see the first question of this exercise, that is you are given with uh, just a minute. See, the question is 860. I'll just check it once again. 867 and 255. 867 and 255. Okay, this is the question na, 867 and 255. You need to find the HCF. So what is the first part you need to do? You have to check which number is greater out of these two, 867 and 255. You can clearly see that 867 is greater. This one is greater than 255. So you will be dividing this one. 867 को divide करोगे तुम जब 867 divide it by 255. So it will go on 3. Okay, so 3 ja. How much you are getting? 765. Okay, so that means it will be 2 and how much? 102. 102 you will get. Okay, so then you will be writing here 255 and it will go over 2. Okay, so it will be how much? 204. Okay, 4. that will be 204, so it will be 51. And then you will be writing here 102, it will go over 2. So it will be 102. And that means what? The last number that you are dividing with is 51. Okay, this 51 you are dividing at the end, so that means this 51 will be what? It will be HCF. So clearly you can write HCF is equal to 51. Okay, this is the last number, but before that you have to write in the form of A equal to BQ plus R. Everything you have to write, like I have told you, है ना? In last class I have told you how you will be writing in the form of A equal to BQ plus R. So everything try to write in this form and then solve it. Okay. See, next important topic is fundamental theorem of arithmetic. ये बहुत important है, इसको ध्यान से समझना. What is fundamental theorem of arithmetic? We are having fundamental theorem of arithmetic. See, fundamental theorem of arithmetic is what? If you are having any number, okay, you can take any composite number, any number you can take, okay, it can be represented in the form of its prime factors, any composite number. Okay, suppose I am taking any composite number 8. Can I write 8 as the prime factors 2 multiply 2 multiply 2 in prime form? 2 to the 4 to the 8. We can write now, or we can write it like this Yeah. also, 2 raised to power 3. Then if we are having suppose 54, 54 is a composite number. If you are writing the factors of 54, so that means what you will be doing? 2 से करोगे, it will be 27. Okay, then 3 9 ja, then 3 3 ja, then 3 1 ja. So it will be how much? 2 2 2 into multiply 3 power 3 into 3 into 3. So it will be 2 multiply 3 raised to power 3. So 3. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो क्या है? इफ यू आर हैविंग एनी कंपोजिट नंबर, देखो तुम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है. देयर आर टू काइंड्स ना, वन इज कंपोजिट, वन इज प्राइम. Prime numbers which are not having any other factor other than its own 1. or 1, है ना. एंड प्राइम कंपोजिट इज व्हाट? विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उनके होते हैं फैक्टर्स, है ना. सो दीज आर कंपोजिट नंबर्स. नाउ the thing is, if you are having fundamental theorem of arithmetic, if someone is asking what is fundamental theorem of arithmetic, what you will be saying? That any composite number, okay, you can have any composite number, like I have taken 8 and 54. यहाँ पे मैंने 8 लिया एक बार और एक बार 54. So you can represent these composite number in the form of what? In the form of prime, है ना. उसको प्राइम्स में
डिवाइड करके लिख सकते हो, तुम उसके फैक्टर्स कर सकते हो. सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. यू आर हैविंग योर definition in your textbook. You can see this one, theorem 1.2. Okay, you have to write in your notebook also this theorem. Every composite number can be expressed as a product of primes. कोई भी composite number है ना, तुम उसको represent कर सकते हो as a product of prime, and this factorization is unique. अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसमें देखो यहाँ तक तो ठीक है. ये जो है every composite number can be expressed as a product of prime मीन्स तुम लोग क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो. बट इसके बाद ना यहाँ पे एक लाइन है, देखो, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर. इसका क्या मीनिंग है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? देखो, अगर ना मैं दो अलग अलग बच्चों को एक कंपोजिट नंबर देता हूं, यहाँ पे सपोज आई एम गिविंग वन स्टूडेंट 10104, है ना. मैंने दो बच्चों को बोला कि इसके ना फैक्टर्स करके लेके आओ 104. ओके, सो और टेक इट एज 105. हाँ, इसको ना 105 ले लो, इट विल बी इजी. 105, मैंने दो बच्चों को एक क्वेश्चन दिया दैट डू द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105. सो व्हाट वन कैन डू? देखो, एक बच्चा ऐसे स्टार्ट कर सकता है, ही विल स्टार्ट विथ 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, then 5 7 जा 7 1 जा. So it will be what, 3 into 5 into 7. But अगर सेकंड बच्चा करना स्टार्ट कर रहा है, ही कैन डू लाइक दिस. वो स्टार्टिंग में किससे डिवाइड कर सकता है? ही कैन डू विद 5 ऑल्सो और 7 ऑल्सो, है ना. 5 2 जा 10, क्योंकि 2 से तो वो नहीं हो रहा है. बट ही कैन डू लाइक दिस ना, 5 2 जा 10, 5 1 जा, देन 7 से कर सकता है, 7 3 जा, है ना, एंड देन 3 1 जा. सो इट विल बी व्हाट, 5 इंटू 7 इंटू 3. देखो, दो बच्चों को ना अगर मैं किसी थर्ड वाले को देता हूं, हो सकता है वो 7 से ही स्टार्ट करे डायरेक्ट. सो दैट मीन्स व्हाट, देखो फैक्टर्स जो हैं वो सेम रहेंगे, फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगा. इफ इट इज 5 इंटू 7 इंटू 3, देखो 3 5 7, यहाँ पे भी क्या है, 3 5 7, दोनों जगह ना फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, दिस इज 3 5 7, तुम देख सकते हो इसको. बट द थिंग इज, एक जगह पे ऑर्डर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 3, और एक जगह पे ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 7. दैट मीन्स व्हाट, इससे डिफरेंस होता ही नहीं है, फैक्टर सेम रहेगा. ओके, बट उसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है. ओके, सो दिस इज कंप्लीट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. उसमें क्या बोला गया है, दैट any composite number, you can have any composite number, it can be represented in the form of prime factors. Okay, prime factors में उसको represent कर सकते हैं. the order can be different, order अलग हो सकता है. okay, order can be different but the numbers will remain same. जब तुम factors करोगे ना, order सबका अलग हो सकता है, but try हमेशा ना smallest number से ही करना है, ठीक है, ताकि ऑर्डर भी तुम्हारा फिर सेम ही आएगा, फिर ऑर्डर डिफरेंट नहीं आता है. बट समटाइम्स स्टूडेंट्स डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वो डायरेक्टली एक बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं. एंड वन मोर थिंग, हमेशा क्या करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है. ऐसा नहीं करना है कि 105 को मैं 21 से डिवाइड करूंगा. ओके, सो ये सब नहीं करना है. ट्राई विद द स्मॉलेस्ट वन, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करो और उसको कंप्लीट करो. ओके, सो in your next exercise na, all the questions are related to this one only. You have to do the prime factors, you have to write it in the form of prime numbers like this. You are given with some composite, I'll show you. See, your next exercise is this one, 1.2. See this one, express each number as a product of its prime. अब देखो, ये सब तुम ना बहुत सिंपली कर सकते हो. तुम लोगों को 140 156 इनके ना क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उसको लिखना है. सपोज आई एम राइटिंग से, देखो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसमें से. सपोज आई एम टेकिंग 140, यहाँ पे ना लेट अस टेक 140. okay, we will do for 140. So it will be 2 7 ja 0, then 2
35. Then again it will be 5, 7, then 7, 1. So what we are getting? We are getting 2 into 2 into 5 into 7. So these are the prime factors we are getting, 2 into 2 into 5 into 7. So that means what? You can here write like this also, 2 raised 2 to power power 2, 2. है ना, 2 raised to power 2 multiply by 5 multiply by 7, because 5 is only one time, 7 is also one time, but these two are coming how many times? Two times. So 2 raised to power 2 into 5 into 7. So this is how you can easily find, बहुत सिंपली तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स. इट इज नॉट दैट मच टफ, वो बहुत सिंपल है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग, in first question all the questions you are having this kind only, prime factors you need to find. See second one, LCM and HCF. LCM and HCF तुम लोग बहुत मतलब 6th 7th 5th 6th से ही करना स्टार्ट करते हो. हाउ टू फाइंड LCM, हाउ टू फाइंड HCF. सी इफ वी आर हैविंग सपोज टू नंबर्स, one is 26 and the other one is 91, 26 and 91, we need to find the HCF and LCM. फर्स्ट वी विल राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ दीज नंबर्स. दोनों के प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे पहले. सो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 वी विल डू फर्स्ट. 26, so it will be 2, 2 1 ja 2, 13, 13 1 ja, because 2 and 13 both are prime numbers. So 26 के फैक्टर्स जब हम लोग करेंगे, it will be how much? 2 into 13. now for 91, 91 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं. ठीक है. so 91 it will be 3 से होगा, नो 7 से डायरेक्ट. 7 1 जा 7 3 जा, so it will be what? 7 into 13. now the thing which is common in both the prime factors, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? HCF लिख देंगे. so it will be HCF will be what? 13. you know this thing कि जो कॉमन, देखो ये तो ना पता है 6th 7th में ही सीख जाते हो, इसलिए इतना ज़्यादा टफ नहीं है. HCF इज 13. अगर कुछ और कॉमन आ रहा होता देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट नंबर, है ना. जितने भी कॉमन थिंग्स होती है उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करते जाना है. एंड LCM इज व्हाट? सो व्हेन यू विल बी राइटिंग फॉर द LCM, सी जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखना है. कॉमन इज व्हाट? 13. देन व्हाट इज लेफ्ट उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 7. So it will be 13 into 2, it will be 26, 26 multiply by 7. So 26 into 7, you will be writing here 26 into, so 7 6 ja 42, 7 and it is 7 2 ja 14 and 16, it will be 162, is it? now the thing is, if you will multiply your HCF and LCM, HCF multiply it by LCM, what are you getting? HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. जो दो नंबर्स है ना उन्हीं का प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. सो जस्ट चेक what are the two numbers you are having? 26 into 91. 26 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1006. Is it? Yes, sir. 26 multiplied by 91. Sir, 1006, sir. Okay, 1006 you are getting. Yes, sir. Okay. Is it correct? Let me check. 6 1 ja 6, 6 9 ja 54. Sir, Multiply. sir, 2106. 1 ja 2. sir, 2 9 ja 18. It will be 2106 बेटा. It is wrong. sir, ये वाला गलत है यहाँ पे. sir, you did wrong here, sir. 182 it will come, sir. यहाँ पे 26 into 7 and 26 into 91. How much you are getting? 2361. 2366, sir. 2366. Okay, 2366. 66. Everyone is getting different answer. Multiplication में भी सबका अलग अलग आते हैं. Okay. Sir, So 2366. and also Right, in sir. this one also 182 multiply by 13 you will get the same thing. उसमें भी same ही आएगा. You can check it. Okay, so this is the question we are having 510 and 92. Okay, so just do the prime factorization first, है ना. पहले prime factor कर लो उसके.
सो इट विल बी 510. 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. देन 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15. देन 5 से करेंगे, सो 5 1 जा, देन 5 7 जा. सो वी आर गेटिंग व्हाट? 2 multiply 3 multiply 5 multiply 17. Okay, this is we are getting for what? 510. Then 92 का भी कर लो ऐसे ही. 92 के लिए करोगे it will be 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, then 2 23, 23 1 जा. So it will be 2 into 2 into 23. Now for HCF के लिए क्या करोगे? You will take 2 because it is there also. Then is anything else that is common? No. No, So sir. HCF will be only 2. Now LCM. So for LCM you will be doing 2 multiply by 3 multiply 5 multiply 17 multiply 2 again 23. All the things that are 20. remaining. देखो एक 2 कॉमन आया है हमारे पास ना, ये वाला जो 2 है दिस इज कॉमन, अदरवाइज एवरीथिंग इज रिमेनिंग. तो सबको मल्टीप्लाई करना है. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट द एलसीएम. तुम्हारा 23 एलसीएम आ तो- जाएगा इधर. ओके, देन Yes, sir. 23 यू plus हैव टू 60 cubes, sir. मल्टीप्लाई द एचसीएफ एंड एलसीएम. इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ और एलसीएम को, एंड चेक वेदर इट इज कमिंग इक्वल टू दिस वन. Yes, sir. Sir, इसके इक्वल आ रहे हैं या 46,000. नहीं आ रहे हैं? जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो. HCF इज गिवन, HCF इज 9 एंड यू हैव टू फाइंड द LCM 306 एंड 657. ओके, नाउ यू नो वन थिंग. देखो तुम लोगों को अच्छे से ये पता होता है दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, HCF into LCM is equal to what? Product of Two टू numbers. नंबर्स, है ना. दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है उसके इक्वल आता है. दैट मीन्स HCF इज गिवन इन दैट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे ना HCF दिया हुआ है. HCF is how much? 9 and the two numbers are 306 and 657. Okay, so you will be taking here 9 multiply LCM you need to find, and that is 306 and 657, the product of these two numbers. So that means what? LCM will be 306 into 657 divided by 9. Okay, so Nine. you can cancel it. 9 1 ja, then 9 3 ja 27, 9 4 ja 36. So 34 multiply by 657. So that will be your answer. When you will multiply 3 4 multiply by 657, you can get your answer. What is after multiplication you can write, है ना. लिख लेना खुद से मल्टीप्लाई करके इधर. थर्ड वाले में देखो, अगर 3 नंबर दिए रहते हैं तो HCF कैसे फाइंड आउट करना है? 12 15 21. देखो सबके ना प्राइम फैक्टर करते हैं. 12 के करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3. देन 15 का करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी 3 इंटू 5. देन 21 का करेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी 3 इंटू 7. नाउ फ्रॉम ऑल द 3, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? फ्रॉम ऑल दीज 3, सो 3 इज कॉमन. सो HCF विल बी 3 एंड LCM विल बी व्हाट? देखो 3 कॉमन आ गया, उसको अलग से लिख लो. बाकी क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7. सो इट विल बी 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 6 7 जा 420. So that is your LCM. So this is how you can easily find. Okay, so HCF LCM you need to find in third question. वो तो बहुत सिंपल है. देखो एक क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये क्या कह रहा है? इफ यू आर हैविंग any number that is having power n, 6 is given and it is having power n. Now it is saying that n can be what? Any natural number. n क्या हो सकता है? कोई भी natural number. Okay, now what it is saying, if we will be solving it one by one, क्या कभी ऐसा होगा कि उस नंबर की n डिजिट 0 आएगी? देखो अगर मैं कहता हूं n की जगह ना मैं स्टार्ट करता हूं,
6 रेज टू पावर 1, 6 रेज टू पावर 1 कितना आएगा 6, 6 6 रेज टू पावर 2 कितना आएगा 36, देन 6 रेज टू पावर 3 कितना आएगा 216। तो देखो ऐसे ये आगे चलता रहेगा 6 रेज टू पावर 4 5। देन इट इज सेइंग क्या कभी ऐसा होने वाला है कि लास्ट डिजिट जो है हमारी, ये लास्ट डिजिट है ना ये वाली, क्या ऐसा होगा कभी जीरो आएगी लास्ट डिजिट? देखो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको ना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये तो समझने के लिए है। तुम लोगों को पता भी लग गया कि कभी जीरो नहीं आएगा, एट द एंड कभी जीरो डिजिट नहीं आएगा। बट करना कैसे है, यू विल राइट लाइक 6 रेज टू पावर n, 6 के प्राइम फैक्टर्स करो, क्या आएगा 2 इंटू 3। ओके 6 की जगह पे मैंने क्या लिखा, देखो ये 6 है ना, 6 की जगह पे क्या लिखा 2 3 जा 6, प्राइम फैक्टर्स करना है एंड टेक होल पावर, उसकी होल पावर कितना लेना है n। नाउ n एक चीज देखो, अगर किसी नंबर को जीरो से एंड होना होता है ना, अगर किसी नंबर के एंड में देखो, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 2 की पावर 1 इट विल बी 2, 2 रेज टू पावर 2 इट विल बी 4, 2 रेज टू पावर 3 इट विल बी 8, 2 रेज टू पावर 4 16। क्या कभी ये वाला जीरो से एंड होगा? ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 5 का चेक करते हैं, देखो 5 रेज टू पावर 1 5, 5 रेज टू पावर 2 25, 5 रेज टू पावर 3 125, 5 रेज टू पावर 4 625, 625 ये भी कभी जीरो से एंड नहीं होगा। तो हम लोगों को पता कैसे लगेगा कि कोई नंबर जीरो से एंड होगा या नहीं होगा? देखो इफ वी आर डूइंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, जो भी नंबर हमारे पास दिया होता है ना, अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं एंड इन द प्राइम फैक्टर्स वी आर गेटिंग 2 एंड 5, अगर 2 और 5 दोनों आते हैं ना देन इट विल एंड विद जीरो, तब उसकी एंड डिजिट जीरो आएगी। इस वाले प्राइम फैक्टर में देखो हम लोगों को 2 मिल गया, बट यहाँ पे क्या मिसिंग है 5, सो इट विल नॉट एंड विद जीरो, ये जीरो से एंड होगा ही नहीं, ठीक है। सो यू विल राइट हियर अ नंबर विच इज हैविंग a number which is having 2 and 5 both in its prime factor। जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए 5, दोनों आने चाहिए कंपलसरी। अगर एक आता है ना तो वो जीरो से एंड नहीं होगा, 2 आना चाहिए 5 भी आना चाहिए, देन इट विल एंड विद जीरो। A number which is having 2 and 5 both in prime factors will end with digit जीरो, वो जीरो से एंड हो सकता है, अदरवाइज कोई नंबर नहीं होता है। देखो अगर मैं कहता हूं तुम्हारे पास ना, मैंने एक नंबर दिया 15, यहाँ पे 15 रेज टू पावर n, क्या ये जीरो से एंड होगा? It will not end because if I'll do the prime factor it will be 3 into 5 है ना, 3 into 5, so we are having 5 है वहां पे, क्या मिसिंग है 2, so it will not end with जीरो, वो जीरो से एंड कभी नहीं होगा। n की पावर तुम कुछ भी ले लो, n की जगह पे कोई भी वैल्यू ले लो, कभी भी वो जीरो से एंड नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट हैविंग 2। सो टू एंड विद जीरो, जीरो से एंड होने के लिए क्या चाहिए, वी नीड 2 एंड 5 दोनों चाहिए हमें, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए। अगर अकेला 2 आ रहा है तब भी नहीं होगा, 5 आ रहा है तब भी नहीं होगा। इफ बोथ आर कमिंग इट विल एंड विद जीरो, तब वो जीरो से एंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके सो मूविंग टू नेक्स्ट वन। हाँ देखो एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड आई विल जस्ट कॉपी दिस वन फ्रॉम हियर आर कंपोजिट नंबर्स। देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। हाँ देखो दीज टू नंबर्स आर गिवन, एक्चुअली ना उन्होंने क्या किया हुआ है, स्प्लिट करके नंबर दिया हुआ है। एक्चुअली दीज आर ओनली 2 नंबर्स, 2 ही नंबर है वो, बट उनको क्या किया हुआ है स्प्लिट, है ना। उसने बोला है कि वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट, ये वाले नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है।
देखो एक चीज ध्यान से देखना, फर्स्ट मेथड इज कि तुम लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे, मींस 7 को 11 से मल्टीप्लाई, देन 13 से मल्टीप्लाई, देन +13, ठीक है, और उसके बाद प्राइम फैक्टर करना है। सेकेंड मेथड क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, जो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर है ना, देखो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, ये वाला 7 इंटू 11 इंटू 13, वेट अ मिनट, हाँ यस दिस वन, 7 इंटू 11 इंटू 13, ये वाला फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फर्स्ट नंबर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है बेटा वो, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है, ये बचेगा। क्योंकि देखो मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स में से ना प्लस के पहले एक टर्म होता है, प्लस के बाद एक होता है, बट आई हैव टेकन कॉमन 13, ओके, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 7 इंटू 11 प्लस 1। नाउ हाउ मेनी फैक्टर यू आर सीइंग हियर, 2 फैक्टर, सी 1 is 13 and 1 is what, you can solve it, 7 into 11 is how much, +1, 70. है ना। अब तुम चाहो तो 78 के और भी ज्यादा फैक्टर्स कर सकते हो, यू कैन डू 78, यू कैन राइट लाइक दिस, 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, सो यू आर गेटिंग 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये सब करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली जब तुमने यहाँ पे देखो कॉमन लिया था ना, यहाँ पे ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, जो तुमने यहाँ पे कॉमन लिया था इसमें ही चेक करो, एक हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है 13 और एक फैक्टर क्या आ रहा है जो ब्रैकेट के अंदर है, वी आर ऑलरेडी गेटिंग मोर देन इक्वल टू 2 फैक्टर्स ना, सो दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ कंपोजिट नंबर, यहीं पे पता लग रहा है वो कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज वहां पे क्या होना चाहिए था, 13 के साथ में ओनली 1 शुड बी देयर। अगर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज 13 इंटू 1 और मैं तुमसे पूछता हूँ क्या ये कंपोजिट नंबर है, इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 इज 13 एंड 1 इज 1, है ना, मीन्स एक तो वो नंबर खुद है और दूसरा क्या है 1 है, सो इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। बट यहाँ पे चेक करोगे ना, सी 13 इज देयर, अदर देन 13 वी आर हैविंग सम नंबर, 13 से अलग भी कुछ नंबर है, सो इट इज व्हाट, कंपोजिट नंबर। सेम देखो सेम केस ना, ये वाला जब दूसरे वाला केस देखोगे ना, फ्रॉम द सेकेंड वन तुम लोग क्या कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेक 5 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 you can write and plus 1, again you can see this 5 is there, है ना, ये 5 यहाँ पे है, this one, and other than this 5 we are having one more factor, है ना, so we are having 2 factors already, अगर हम सॉल्व नहीं भी करते हैं तो 2 फैक्टर्स तो है ना, so that means what, it is having equal to or more than 2 factors, both the numbers, ये दोनों जो नंबर्स है ना हमारे पास, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, both are having equal to or more than 2 factors, so these are what, composite numbers। उसने यही बोला है कि ये composite क्यों है, so this is the reason you will be writing composite number। okay, now moving to the next question, देखते हैं next में क्या है। okay, there is a circular path around a sports field, Sania takes 18 minutes to drive one and Ravi take 12 minutes, so after how many minutes they will meet। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ना एक राउंड इस तरह का कुछ फील्ड है, सानिया इज रनिंग, सी इज टेकिंग हाउ मेनी मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड, 18 मिनट्स, है ना, 18. सी इज टेकिंग 18 मिनट्स, एंड हाउ मेनी मिनट्स रवि इज टेकिंग 12 मिनट्स, 12. okay, Ravi is taking 12 minutes, so the question it is asking in how many minutes they will meet, कितने मिनट्स के बाद वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। अच्छा देखो अगर यहाँ से ना सपोज दिस ए पॉइंट से सानिया ने रनिंग करना स्टार्ट किया, ओके, देन एंड सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट रवि इज ऑल्सो रनिंग, वहीं से रवि भी रन करना स्टार्ट करते हैं। रवि ने एक राउंड कितने मिनट्स में कंप्लीट किया,
12 मिनट्स में। दैट 12. मीन्स उसके पास एक्स्ट्रा 6 मिनट्स हैं, और एक्स्ट्रा 6 मिनट्स में वो और आगे पहुंच जाएगा। वेयर ही विल बी एट दिस पॉइंट, है ना, हाफ राउंड और कंप्लीट कर लेगा। और इतने टाइम में सानिया कहां पे पहुंचेगी? एट ए। सो दे आर नॉट मीटिंग इन वन राउंड, एक राउंड में वो लोग नहीं मिलेंगे। सो हाउ टू फाइंड दिस काइंड ऑफ केस? जब हमारे पास ऐसा होता है ना, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लो। 18 एंड 12 दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करो। सो इट विल बी व्हाट, 2 9 जा 2 6 जा, then 9 3 3 3 ja 3 1 ja, then again 3 1 ja. Okay, so what LCM we are getting? 2 2 ja 4 4 3 ja 12 12 3 ja 36. 36. This is the LCM we are getting. That means what? In 36 minutes they 36 will minutes. meet. 36 minutes के बाद वो लोग मिलेंगे 100%. Okay, why? देखो, आफ्टर 18 मिनट्स, 18 मिनट्स के बाद सानिया की पोजीशन कहां पे है? एट ए। आफ्टर 36 मिनट्स, यानी कि 2 राउंड होने के बाद सानिया कहां पर है? अगेन एट ए। दैट मीन्स व्हाट? आफ्टर 2 कंप्लीट राउंड्स, 2 राउंड्स के बाद सानिया के कितने मिनट्स हो जाएंगे? 2 राउंड्स के बाद 36 मिनट्स। 36. बिकॉज 1 राउंड सी इज टेकिंग इन 18 मिनट्स। एक राउंड कंप्लीट कितने मिनट्स में हुआ? 18 में। सो 36 मिनट्स में कितने राउंड हो गए? 2 राउंड्स। और 2 राउंड्स के बाद उसकी पोजीशन क्या है? एट ए। ठीक है, उसकी 2 राउंड्स के बाद Yes. पोजीशन होगी एट ए। नाउ अगर रवि की बात करते हैं, आफ्टर 12 3 मिनट्स, rounds. 12 मिनट्स के बाद रवि 3 कहां rounds. पे आएगा? ए पे। 24 मिनट्स के बाद कहां पे आएगा? अगेन ए। एंड 36 के बाद कहां पे आएगा? ए। So that means what? At A he will be completing how many? 3 rounds. So अगर उन दोनों को वहां पे A पॉइंट पे फिर से मिलना है, that means रवि को कितने राउंड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे? 3 राउंड्स, एंड सानिया को 2 राउंड्स। 3 rounds. ओके, सो 2 2 rounds. राउंड्स 3 राउंड्स, एंड हाउ मेनी मिनट्स दे विल बी कंप्लीटिंग? 36 मिनट्स। 36 मिनट्स में वो लोग एक दूसरे से फिर से वहां पे मिलेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। ये एक्सरसाइज इसके साथ ही कंप्लीट। देखो, सपोज यू आर गिवन विद अ नंबर, ओके, यू आर गिवन विद 30, यू आर गिवन विद 30 रेज टू पावर n, एंड इट इज आस्किंग कि क्या ये 0 से एंड होगा। इफ यू आर गिवन विद 30, वो पहले ही 0 से एंड हो रहा है। देखो, हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, बट 30 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 15 3 5 जा 5 1 जा। सी वी आर गेटिंग 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू पावर n. That means what? It will end with 0. ये 0 से end होगा because it is having 2 and 5 दोनों नंबर्स हैं इसमें, 2 भी है 5 भी है। तुम लोगों को ये नहीं सोचना है कि इसमें तो 3 भी आ रहे हैं, बाकी कुछ भी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट शुड बी हैविंग 2 and 5 बोथ, दोनों होने चाहिए। उसके बाद कुछ भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं।